Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th Economics chapter number 5 Poverty. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 7 of the chapter. So students, now let us move on with the today's portion. Before moving to the today's portion, let us have a short summarization of the previous video. What we have seen in the previous video. So previously we have seen in a very detailed manner about the remaining indicators of the poverty, in which we have seen education. According to the comparison of the Brazil, it was been having 91% of education literacy rate, while in India it was just 74.46%. After that we have seen that in Pakistan comparatively to India it was only 55%. What is literacy rate? First of all, above 15 years old, the person who is above 15 years old is knowing to read and write is considered as an literate person, and the person who is not knowing to write and read is considered as the illiterate one. So regarding this topic we have seen in the education. So how it is considered as the poor one, which means the poverty, how it is considered as an indicator. So if you are seeing the education, without the education the lack of training and the lack of knowledge are being seen up among the people. Even the people, those who are less educated, are mostly the conservative one, are not able to accept the changes. So due to that the poverty level goes and increasing in this manner, because without education you cannot do the job according to your according to your choice, we can say that. Rather than that, you cannot do job or you cannot do any efficient work, or whatever the wages is given to you, according to that you have to work. So according to this scenario, if you are seeing education is an important indicator which leads up to the unemployment if you are not having the proper education, by which again the poverty increases in the scenario of any country. So due to this it is considered as an indicator in the indicators of poverty. After that we have seen that unequal distribution of income and property. So you have seen after the economics reform 1991 there was a major change in the economic class, which means the people, those who are rich, they got rich and rich more enough after the 1991 economic reform. The one who is less was poor was getting the more poverty in that portion. Even a table of 1% rich contribution on the national income was been seen up, in which it was been seen up in India in 1998 it was of only 9%, which increased to the 12.06%, which means it increased up to 4%. This shows that the 1991 economic reform gave the most 90% favor to the richest class. The richer class got more richer and used to get the good facility and enjoyed their lifestyle, but the poor got more poor. Even we can say that by only not increasing the per capita income, any country can achieve the success, but the poverty should also get reduced. But according to 1991 economic reform, the poverty did not reduce, but the per capita income increased due to few high class people. So few high class people, in the sense the people those who are rich, according to their actual national income increased, and due to that only the per capita income increased. That we saw. After that we saw that the high rate of unemployment. According to the portion of the education of the economic, if you are seeing, unemployment is a majorest indicator for each and every economic concept. It was being seen that whenever the economic growth was being seen and economic reform has been seen up at that portion, according to the economic growth, according to the per capita growth, the job opportunity did not increase, and due to that what happened? Due to that the supply of the labor, which means the population got increased but the job opportunity got low. So due to which the unemployment situation was been seen more in the country.
which considered as a severe issue in today's portion also. Why? If an individual is not getting the job, and if he is not doing the job, it means he cannot earn or fulfill his basic necessity, not even the family's basic necessity. So due to this, it was being seen up as an important indicator in the poverty measurement. So here we have closed the topic, means here the indicators was being over. So after that we have completed the portions. I hope you all have understood the revision in a very well manner. So now let us move on with the today's topic in a very brief manner from the PDF in the further video. So students, now let us move on with the causes of the poverty. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very brief manner. To solve any problem, it is better to know its causes and find the solution. To eradicate the problem of poverty, it is necessary to understand its reason. In India, the cause of poverty are as follow. To solve any problem, कोई भी problem को solve करने के लिए हमें उसका causes यानी वो क्यों हो रहा है उसका रीज़न पता होना चाहिए, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस देखना पड़ता है. अगर हमें प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को इडैक्ट करना है यानी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को हटाना है, तो इसके लिए ये नेसेसरी है कि हमें उसके पीछे का रीज़न पता चले. इसीलिए इंडिया में किस रीज़न से पॉवर्टी देखा जाता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, वो चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. सो लेट अस रीड दैट in a very brief manner. The first is historical reason. तो हमारी कहीं ना कहीं एशियन से एक कनेक्टिविटी है. गरीबी जो है वो पुराने टाइम से ही देखा जा रहा है. एशियन से हिस्ट्री यानी हिस्ट्री से ही हमें कहीं ना कहीं गरीबी देखने को मिलता है. सो व्हाट इज द रीजन, वहां से कैसे शुरू हुआ, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. Historian says that in the 17th century, India was comparatively more urbanized and more commercialized nation. In business, India had major shares in exports of cotton textile, and with that silk, spices, paddy was also exported. But after the entry of English, French and Dutch people, and due to their policies of colonial exploitation, Indian agriculture and industrial situation deteriorated. हिस्टेरियन यानी जो हिस्ट्री को रीड करते हैं, वैसे हिस्टेरियन लोग ये कहते हैं कि अगर 17th सेंचुरी में हम इंडिया को देखें तो अभी जो इंडिया है इससे ज़्यादा अर्बनाइज्ड यानी सिटी के रूप में ये देखा जाता था, और कमर्शियलाइज्ड भी था यानी बिजनेस भी यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता था. इंडिया एक ऐसा नेशन था जो अर्बनाइज्ड और कमर्शियल यानी ट्रेडिंग के साथ डेवलप करता था. बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में मेजर शेयर्स जो है कॉटन टेक्सटाइल्स पे होते थे, सिल्क्स एक्सपोर्ट्स होते थे, स्पाइसेस होते थे, इवन पैडी यानी राइस को भी हम एक्सपोर्ट करते थे. बट जैसे ही इंग्लिश लोगों ने यानी यू नो दैट ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच पीपल ने हमारे यहाँ एंट्री लिया, यू नो दैट दे रूल्ड अस फॉर 200 ईयर्स. तो जब उन्होंने हमारे ऊपर वी कैन से दैट रूल जमाया या हमारे घर के यानी इंडिया के अंदर घुसे, उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज लगाई थी, जैसे कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कि इस समाज में ऐसा नहीं होगा, ये वाला नया रूल है, अब इसको आपको फॉलो करना है. आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ दे केम टू अवर कंट्री एंड दे रूल्ड अस. ठीक है, पहले तो वो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट करने आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने ही हमारे ऊपर कब्जा जमा लिया था. उस टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सिचुएशन को बहुत ही खराब कर दिया गया. डिट्रॉयटेड मतलब एकदम तहस नहस कर दिया गया. So now let us see the next paragraph. During the British rule, the agriculture sector suffered in India due to many reasons. On one hand, Indian agriculture was based on monsoon. Britishers did not show any interest in investing money in irrigation project. On the other hand, due to repeated droughts, zamindari system and money in irrigation projects, tenancy system, the farmers' economic condition deteriorated, and they were under the pressures of debt and interest of loan given by zamindars, moneylenders and big businessmen. Cultivators and losing land, the farmers and the agriculture suffered, and so poverty increased.
अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करते, ब्रिटिश रूल जब किया जा रहा था उस टाइम में इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही सामना करना पड़ा, यानी वर्स्ट सिचुएशन में एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जा रहा था, वो भी बहुत सारे रीजन की वजह से। यू नो दैट एशियन इंडिया वाज हैविंग 70% एग्रीकल्चर, हमारा पूरा इंडिया का नेशनल इनकम 70% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से निकलता था। ब्रिटिशर्स ने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयड यानी सबसे ज्यादा तहस नहस एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया। एक साइड अगर आप देखो तो इंडियन एग्रीकल्चर जो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून पे डिपेंडेंट था, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी, यानी आपको पता है अभी इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत सारे अवेल किया जा रहा है। उस टाइम पे अगर बारिश नहीं गिरी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए ब्रिटिशर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा, उसमें कोई पैसे नहीं लगा। अब हम ये पूछेंगे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स कौन होते हैं पैसे लगाने वाले, बट जब वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो यहाँ का हर एक सर्टेन डिसीजन वही लोग लेते थे। तो उन्होंने एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी या प्रोजेक्ट पे कोई दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट नहीं लिया, ना कि पैसे लगाए। दूसरे साइड ऑन द अदर हैंड इफ यू सी ड्राफ्ट, बार बार अकाल पड़ना, बारिश नहीं होना, जमींदारी सिस्टम चल रही थी, जमींदार हमको पैसे देते थे, जमीन उनका होता था, हमें सिर्फ काम करके आ जाना पड़ता था, वो हमें सैलरी देते थे। टेनेसी सिस्टम यानी भाड़े पे जमीन दिया जाता था, उसमें भी भाड़े पे क्या लिया जाता था, जो प्रोडक्शन होता था उसका 60% जमींदार ले जाते थे। इस तरीके से फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही खराब तरीके से देखा जा रहा था। कंटिन्यूअस फार्मर को डेप्ट यानी कर्जा, और जो लोन उन्होंने जमींदार या पैसे देने वाले जो पैसे देते हैं ब्याज पे, मनी लेंडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन लोगों से जो पैसे लिए थे उसका इंटरेस्ट और कर्जे से ही डूब जाते थे, जिससे कल्टीवेटर्स यानी जो फार्मिंग करते थे उन लोगों का अपना भी जो खुद का जमीन होता था वो भी धीरे धीरे वो बेचने लगे। इस तरीके से फार्मर्स और एग्रीकल्चर दोनों को बहुत गरीबी की ओर धकेला गया और कहीं ना कहीं पॉवर्टी इस तरीके से इंक्रीज होने लगा। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पोर्शन। In case of business and trade, Britishers follows that kind of trade policy, tax policy and industrial policy which would benefit them by trading in India. India exports were prohibited in Europe, whereas goods produced in England were given a lot tax concession and freedom to sell in the Indian market. Moreover, to supply these goods to each and every corner of India, Indian railway was extensively used. अगर हम बात करते हैं बिजनेस एंड ट्रेड की, हमने देखा कि कॉटन, राइस, सिल्क, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जूट इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। बट जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने ट्रेड पॉलिसी में, हर एक ट्रेड पॉलिसी में अपना फायदा करना शुरू कर दिया। टैक्स पॉलिसीज बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज किए, जिसमें बेनिफिट जो है जो इंडिया के साथ ट्रेड करता है उनको होता था, ना कि इंडिया को होता था। वन साइड वी कैन से दैट वन साइडेड, यानी इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं, उसके साथ जो भी ट्रेडिंग कर रहा है उनको हर एक बेनिफिट मिलता था, यानी वन साइडेड ट्रेड कहीं ना कहीं देखा जाता। इंडिया का जो भी गुड्स है उसको एक्सपोर्ट करने में प्रोहिबिट कर दिया, यानी यूरोप में इंडिया का कोई चीजें बेचा नहीं जाएगा, जबकि यूरोप इंग्लैंड में बना हुआ कोई भी चीज इंडिया के अंदर कोई भी टैक्स के बिना या कम टैक्स में बेचा जाता था। इवन कोई भी इंडियन मार्केट में यूरोप का, इंग्लैंड का हर एक चीज बिकने के लिए एकदम फुल फ्रीडम दे दिया गया। इन शॉर्ट, हमारी कोई चीज बाहर नहीं बेची जाएगी, बट बाहर की सारी चीजें हमारे यहाँ बेची जाएगी और हमें उसे खरीदना पड़ेगा। इस तरीके का एक सिनारियो ब्रिटिशर्स ने स्टैंड अप कर दिया, जिससे हमारा जो सप्लाई है वो तो बंद हो गया, बट बाहर का जो सप्लाई है हर एक कॉर्नर ऑफ इंडिया में मिलता था। अब ऐसा भी नहीं है कि बाहर से चीजें यहाँ लाने के लिए कोई और ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाए, उसके लिए भी इंडियन रेलवे को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। सी हाउ लॉजिकली दे प्रिंट, हमारा तो एक्सपोर्ट बंद हो गया, यानी हमारा इनकम बंद हो गया, हमें बाहर कोई भी चीजें बेचने को, यानी हमारा एक्सपोर्ट इनकम नहीं, यानी हमारा इनकम तो ऑल्सो बंद, यानी इंडिया के अंदर जितना लोकल मार्केट में बिकेगा उतना ही हमारा नेशनल इनकम। यूरोप का प्रोडक्ट यहाँ पे आता था, उसके लिए यूज भी रेलवे को किया जाता था, इंडियन रेलवे को। नो फीस फॉर दैट टैक्स कंसेशन, यानी टैक्स में हर बेनिफिट यूरोप वालों को मिलता था, उनकी चीजें यहाँ आती थी और उनके रेट में बिकती थी जो इंडियन खरीदते थे, यानी जो भी इनकम यूरोप जनरेट करता था वो अपने कंट्री ले जाता था। तो यानी एक तरफा ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से देखा गया। इस तरीके से बिजनेस और ट्रेड में भी कहीं ना कहीं इंडिया को पॉवर्टी का सामना करना पड़ा। Now let us see the next paragraph in a very detailed manner. Both of this kind of policy, Britishers gained surplus from production and sales in India.
which they invested in Britain to speed up industrialization and used Indian market to sell final goods produced in Britain. In this system, Indian trade and business started losing their competitive power and production power. Small and cottage industries of India were ruined. As a result, unemployment and poverty started increasing. तो इस तरीके के पॉलिसीज लगाए गए जिससे ब्रिटिशर्स को डबल प्रॉफिट यानी सरप्लस यानी जो प्रोडक्शन करते थे और जो सेल इंडिया में करते थे उससे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होता गया और उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन जो है स्पीड अप से बढ़ता गया और वो इंडियन मार्केट को सिर्फ और सिर्फ अपनी फिनिश गुड बेचने के लिए यूज करते थे। जो ब्रिटेन में चीजें बनती थी उसको इंडिया में बेचा जाता था। इस तरीके से इस सिस्टम के अंदर इंडिया का ट्रेड और बिजनेस को धीरे धीरे कॉम्पिटेटिव पावर जो है और प्रोडक्शन पावर कम होता गया। आपका चीजें बिक ही नहीं रहा तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं। क्यों? अगर आपको फॉरेन प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट दिया जाएगा तो आप क्या लोगे, जेन्युइनली फॉरेन प्रोडक्ट। तो इंडियन प्रोडक्ट का कहीं भी मार्केट नहीं रहा। इस तरीके से स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर बहुत खराब तरीके से र्यून यानी बंद कर दिए गए। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी पॉवर्टी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगा। एग्रीकल्चर को फर्स्ट टारगेट किया गया, फिर बिजनेस एंड ट्रेड जिसके अंदर स्मॉल कॉटेज और ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया। वन साइडेड ट्रेड देखा गया जिस रीजन की वजह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ऐसा हिस्ट्रियंस कहते हैं यानी पुराने टाइम से अगर आप नोटिसिफाई करो तो ये सारी चीजें हमें जानने मिलता है। सो नाउ कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी, ये तो बात हुई हिस्ट्री रीजन हिस्टोरिकल रीजन यानी पुराने टाइम से कैसे पॉवर्टी स्टार्टअप हुआ। नाउ द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, गांव के अंदर कैसे पॉवर्टी देखा जाता है। फर्स्ट वन इन दैट इज नेचुरल कॉज। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। India has been an agriculture country from the beginning and today also a major portion of population lives in India and it dependent on agriculture. In India, production in agriculture sector is based on natural factors like rain, weather condition, etc. Repeated drought, uncertainty of monsoon and flood resulted into low production and less and uncertain income of the agriculturist, hence poverty is more. Natural cause, इंडिया की आपको पता है इंडिया में 70% एग्रीकल्चर देखा जाता था। बिगनिंग से लेके आज तक ज्यादातर प्रोपोर्शन यानी मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो गांव में रहते वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही बेस्ड होता है, ये माना जाता है। इवन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है तो नेचर फैक्टर्स के। नेचुरल फैक्टर्स का मतलब कैसे, बारिश गिरेगा तो एग्रीकल्चर, जैसे अभी हरिकेन आया तो पूरा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा तहस नहस हो गया। यू नो दैट मैंगोज वर बीन फॉलन अप, सारे कैरी जो पेड़ में लगे थे वो पके बिना ही नीचे गिर गए। और इवन कितने सारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें बहुत सारे डिट्रॉयशन यानी बहुत सारी तहस नहस देखी गई। तो इस तरीके से वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। रिपीटेड डॉट, बार बार कहीं ना कहीं अकाल गिरना, बारिश ठीक नहीं होना, सूखा पड़ जाना, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून, फ्लड, बाढ़ आ जाना जैसे अभी आया साइक्लोन, इस सारे रीजन की वजह से कहीं ना कहीं लो प्रोडक्शन देखा गया। और ये जो लो प्रोडक्शन जो है इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं उनका इनकम धीरे धीरे कम होता गया और हैंस ये सारी रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी और बढ़ने लगा। सो इस तरीके से नेचर कॉज भी यानी नेचर की वजह से भी कहीं ना कहीं हमें पॉवर्टी का सामना करना पड़ा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द सेकेंड फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया, due to economic development and rapid movement in health service, on the one hand, death rate declined fast, but at the same time, birth rate did not reduce. As a result, high population growth rate was noticed. High increase in population did not allow per capita income to increase. Low per capita income and big size of families resulted into poor quality of life. There was rapid increase in labor supply because of high population, but low pace of development of economic opportunities result in reduction in wage rate. So unemployment increased and so was poverty.
इंडिपेंडेंस के बाद जैसे इंडिया में प्लानिंग किया गया, इंडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, रैपिडली हेल्थ सर्विसेज में कैसे इंप्रूवमेंट देखा जाए, तो उस साइड पे एक तरफ जहां ज्यादातर डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा था, यानी लोग कम मर रहे थे, उसी टाइम में बर्थ रेट जो है वो कम होने की जगह बढ़ने लगा, यानी डेथ रेट कम होना और बर्थ रेट बढ़ने लगा, यानी पॉपुलेशन ज्यादा होना। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, जो हमने नोटिस किया उससे भी ज्यादा एकदम इंक्रीज हो गया। यू नो दैट नाउ द सिचुएशन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट, पॉपुलेशन फट गया हो, यानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गया, ये सिचुएशन माना जाता है। हाई इंक्रीज पॉपुलेशन में देखने की वजह से हमने जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो उसके साथ पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। लो पर कैपिटा इनकम और बड़े साइज ऑफ फैमिलीज, एंड यू नो दैट फैमिलीज आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। यू नो दैट सर्टेनली इंडिपेंडेंस के बाद एक घर पे 6-6, 7-7 बच्चे देखे जाते थे। सो बड़ा साइज का फैमिली होता था और वहां पे लो पर कैपिटा इनकम होता था, इनकम तो एक ही जनरेट करता था और लोग ज्यादा थे, तो इस तरीके से उनको पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना पड़ता था। अब 10 लोग, जैसे हम मानते हैं 6 से 7 बच्चे, मदर एंड फादर, तो कितने, 8 लोग तो हो गए, कमाने वाले सिर्फ फादर, तो एक कमाए और 8 खाए, तो कैसे पॉसिबल है अच्छी लाइफस्टाइल? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उनका पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाता था। ये जो रैपिड इंक्रीज लेबर सप्लाई में देखा गया, यानी पॉपुलेशन बढ़ती गई तो काम करने वाले भी बढ़ेंगे ना, अबाउ 15 लोग काम करने के लिए जाएंगे, तो लेबर सप्लाई बढ़ता गया। बट हाई पॉपुलेशन की वजह से जितना डेवलपमेंट इकोनॉमिकली एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए उतना अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी, लेबर की सप्लाई बढ़ने लगी, तो क्या होगा, ज्यादातर लोग काम करने आएंगे, जगह कम होगी तो वेज रेट गिरेगा। लोगों को पता है मजबूरी में कोई ना कोई तो कम रेट में काम करेगा, तो वेजेस का रेट गिरने लगा। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, वेजेस रेट गिरे, वैसे पॉवर्टी देखा गया। इन शॉर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, वेज रेट का कम होना और धीरे धीरे पॉवर्टी बढ़ने लगा। तो ये हुआ डेमोग्राफिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे, फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। सो इकोनॉमिक टॉपिक से लेके आगे का सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the causes of poverty. पॉवर्टी क्यों बढ़ा, किस रीजन से बढ़ा, पॉवर्टी का प्रॉब्लम ये है, इंडिकेटर ये है, ये सारी चीजें हमने जान ली. व्हाट इज पॉवर्टी, दैट ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड इन अ वेरी वेल मैनर. बट हाउ इट स्टार्टेड, कहाँ से पॉवर्टी शुरू हुआ, उसकी कॉज क्या है, किस वजह से पॉवर्टी बढ़ रहा है, तो कैसे हम पॉवर्टी को बंद कर सकते. कोई भी सिचुएशन का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, उसका प्रॉब्लम जाने बिना, कॉज जाने बिना हम उसकी सॉल्यूशन नहीं कर सकते. इसीलिए हमें पॉवर्टी का भी कॉज जानना नेसेसरी है. तो कॉज के बारे में आज हमने डिटेल में देखा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा हिस्टोरिकल रीजन. हिस्टोरिकल रीजंस की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जब इंडिपेंडेंस के पहले अगर हम बात करते हैं 17th सेंचुरी पे, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे, उस टाइम पे कमर्शियली, ट्रेडिंग में, बिजनेस में, रेदर देन दैट अर्बनाइजली हमारा इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो कंट्री था वो बहुत ही बेस्ट और वेल डेवलप्ड माना जाता था. बट धीरे धीरे जैसे ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच पीपल यहाँ पे आए, उन्होंने अपना सत्ता, यानी उन्होंने अपना जो है गवर्नमेंट यहाँ बिछा दिया और हमारे ऊपर रूल करने लगे. जब वो हमें रूल करने लगे उसके बाद ही हमारा कहीं ना कहीं पॉवर्टी शुरू हुआ. सबसे पहले इफेक्ट जो है एग्रीकल्चर लैंड में देखा गया. 17th सेंचुरी में हम कॉटन, जूट, सिल्क और पैडी की एक्सपोर्ट करते थे और 70% हमारा लैंड जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड होता था. बट जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने काफ़ी सारी सिस्टम को चेंज किया, पॉलिसी को चेंज किया, टैक्स पॉलिसीज लगाए, जमींदारी सिस्टम देखे गए, टेनेसी रेट देखा गया. इस तरीके से कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस आउट करना पड़ा. एग्रीकल्चर को बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन फेस आउट करना पड़ा. यू नो दैट
दैट कि इंडियन एग्रीकल्चर 70% था, बट डिपेंडेड ऑन द नेचुरल फैक्टर्स, यानी रेन पे ज्यादातर डिपेंडेड होता था। बट उसके लिए जो इरिगेशन फैसिलिटी, अगर रेन ना हो तो इरिगेशन फैसिलिटी का जो चीज होता है उस चीज पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और उसको अनइंटरेस्टेड जोन में डाल दिया, जिससे एग्रीकल्चर को अलॉट फेस करना पड़ा। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट कि जमींदारी सिस्टम के वजह से, रेदर देन दैट टेंडरेंसी रेट के वजह से लोगों यानी जो फार्मर्स या कल्टीवेटर्स है उनको बहुत सारा डेप्ट और लोन के नीचे दबना पड़ा, इसलिए उनको अपना लैंड भी बेचना पड़ा और उन्हें एग्रीकल्चर से भी धीरे धीरे हाथ धोना पड़ा। इस तरीके से फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों ही एक बहुत ही मेजर डिट्रॉइशन से बाहर आता हुआ, यानी धीरे धीरे पॉवर्टी उसके अंदर ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आया। आफ्टर दैट वी हैव सीन द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया विच मीन्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो शुरुआत के टाइम पे इवन उसमें भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? तो इंडिया की जितने भी चीजें एक्सपोर्ट होती थी उसे पूरी तरीके से यूरोप में बैन कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। यूरोप की सारी चीजें यहाँ पे कम टैक्स में मंगाए जाते थे और इंडियन मार्केट में कोई भी कॉर्नर में उसको बेच के बेचा जाता था। रेदर देन दैट उसके सपोर्टिव में हर एक जो है पॉलिसीज फ्रेमअप किए जाते थे। नेक्स्ट उसको वहां से यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी इवन इंडियन रेलवे को ही यूज किया जाता था। धीरे धीरे तुम देखो तो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, रेदर देन दैट छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज इंडियन मार्केट में जो चलते थे वो सारे लोगों को कंपटीशन यानी इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से दबना पड़ा। प्रोडक्शन उनकी कम होती गई और धीरे धीरे उनका जो डिट्रॉइशन वो भी धीरे धीरे शटडाउन वाइंड अप होने लगा। जबकि ये सारी चीजें यूरोप और इंग्लैंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा। उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्पीड अप में देखा गया, डबल प्रॉफिट वो कमाने लगे क्योंकि उनको टैक्स में भी कंसेशन, इंडियन रेलवे से फ्री में भी यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता था और उन्हीं के रेट में यहाँ बेचा जाता था। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय किया गया था। ये तो हुआ हिस्टोरिकल रीजन। After that we have seen the causes of poverty in rural area. So rural यानी गांव में poverty कैसे डेवलप हुआ, उसमें से फर्स्ट टॉपिक ये था नेचुरल कॉज। आपको पता है गांव के आज भी ज्यादा से एशियन टाइम से लेके आज तक लोग जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। एग्रीकल्चर यू नो दैट इट फुल्ली डिपेंड्स ऑन द नेचर्स फैक्टर्स, जैसे कि रेन होना, रेदर देन दैट उसमें बारिश होना, ड्राफ्ट अगर आ जाता है तो खराब हो जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वेदर, ये सारी चीजों पे ही जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेड रहता है। बट जैसे हमने देखा इतना डिपेंडेड होने के बावजूद भी हमें जितना फैसिलिटीज मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। बार बार अकाल पड़ना, टैक्सेस में इंक्रीज होना, ये सारी रीजन के वजह से गांव में जो है पॉवर्टी धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस रीजन के वजह से, नेचर के वजह से एक तरफा जो है एग्रीकल्चर में धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होने लगा, एफिशिएंसी कम होने लगा और पॉवर्टी बढ़ने लगा। नेक्स्ट इट इज डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें या उस टाइम पे बात करें तो हमने ये ट्राई किया डेथ रेट को कम किया जाए और बर्थ रेट को भी माप में रखा गया। लोग कम मरे और कम जन्मे भी, बट कहीं ना कहीं डेथ रेट तो कम हो गया बट लोगों की बर्थ रेट इंक्रीज होता गया। डेथ रेट का कम होना और बर्थ रेट का इंक्रीज होना, उसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था उस हिसाब से कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था। एज अ रीजन क्या हुआ, लोगों की यानी लेबर्स की सप्लाई बढ़ने लगी, जॉब अपॉर्चुनिटी कम होने लगी और धीरे धीरे वेजेस रेट गिरने लगा। अगर आपको 2 इंसान की जरूरत है और आपके सामने 6 इंसान खड़े तो कोई भी कम रेट में भी काम करने रेडी हो जाएगा कंपटीशन में। इसी तरीके से वेज रेट कम होता गया और जैसे जैसे वेज रेट कम होता गया, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखी गई, उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं जो है पॉवर्टी बढ़ता गया। सो ये सारी रीजन के वजह से पॉवर्टी रूरल एरिया में बढ़ा। ये तो हमने सिर्फ नेचर और डेमोग्राफिक देखा, अभी सोशल और इकोनॉमिक भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द today's portion in a very well manner. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope that you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.